پانی پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، ہر صورت سے انتاز معاہدے کا تحفظ کریں گے۔ بھارت نے پانی روکا تو اپنے حق کے لیے بھرپور جواب دیں گے۔ ہم ایک معاہدے کی نہیں بلکہ 24 کروڑ عوام کی زندگی کی شرح پر بات کر رہے ہیں۔ دریائے سندھ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کی آبیاری کرتا آیا ہے۔ سنتاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار کے افتتاحی سیشن سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا خطاب۔ کہا پاکستان نے ہمیشہ پرامن روابط، تعمیری مذاکرات اور معاہدے پر مخلصانہ عمل درآمد کے عزم کا مظاہرہ کیا۔ کہا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی و بین الاقوامی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ معاہدوں کا احترام ہی قوموں کے درمیان اعتماد اور عالمی نظام کے استحکام کی بنیاد ہے۔ زراعت قومی معیشت کا بنیادی ستون ہے۔ سنتاس معاہدہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے اور امن کے لیے ہے۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی مہر علی شاہ کا بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا سنتاس معاہدے سے ہماری زراعت، خوراک اور معیشت جڑی ہوئی ہے۔ عالمی ثالثی عدالت واضح کر چکی ہے کہ بھارت معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ عدالت نے بھارت کو مغربی دریاؤں کے بہاؤ میں خلل نہ ڈالنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ بھارت کا یک طرفہ طور پر معاہدے کو معطل کرنا خلاف ورزی ہے۔ بھارت اگست 2023 سے معاہدے پر عمل نہیں کر رہا۔ بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے ہمارے 6000 لوگ جاں بحق ہو چکے، اتنے لوگ جنگوں میں بھی نہیں مرتے۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کا سیمینار سے خطاب۔ کہا اصل مسئلہ پانی کو کنٹرول کر کے بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ سنتاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ایک ہے۔ کسی کو علاقائی امن یا عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر یہ مضبوط ترین معاہدہ قائم نہ رہا تو پھر دنیا کا کوئی معاہدہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ پانی کی عدم دستیابی سے پاکستان ہی نہیں بنگلہ دیش کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ بھارت دنیا کا تیسرا آلودگی پھیلانے والا ملک ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو معطل رکھنے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا چکے ماہر بین الاقوامی قوانین احمد بلال صوفی کا سیمینار سے خطاب۔ کہا بھارت نے قانونی راستہ اپنانے کے بجائے کشیدگی اور جنگ کا راستہ چنا۔ مقبوضہ جموں کشمیر ایک تسلیم شدہ عالمی تنازع ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو معطل رکھنے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا چکے ہیں۔ بھارتی اقدام اقوام متحدہ کے منشور کی بھی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہر مسئلے کا قانونی پہلو بھی ہے۔ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ روسی ماہر ڈاکٹر رکسولا نازیکون کا بھارت کے آبی موقع پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا سیاسی مقاصد کے لیے سنتاس معاہدے کو کمزور کرنا خطرناک اقدام ہوگا۔ پاکستان کی پوری آبادی کسی نہ کسی صورت دریائے سندھ کے نظام سے منسلک ہے۔ پانی پر تعاون ہی خطے میں امن اور استحکام کی ضمانت ہے۔ بھارت نے عالمی قانون کی توہین کی ہے، دریاؤں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی۔ خرم دستگیری کا سیمینار سے خطاب۔ کہا سنتاس معاہدے کی معطلی قانونی اعتبار سے بے معنی ہے۔ معاہدے میں ایسی کسی یک طرفہ معطلی کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ دوحہ مذاکرات اہم ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہے۔ امریکی صدر کی نیوز کانفرنس ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات دوحہ میں ہوں گے۔ مفاہمت دو طرفہ معاملہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے گا تو ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ غیر معقول شیخی بھگاڑنے اور بے بنیاد دھمکیوں کے مقابلے میں ہمارا موقف واضح ہے۔ ہمارا موقف ہے فیصلے کرتے وقت عقل اور دانش اور انسانی وقار کو بلند بنایا جائے۔ آئندہ دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان کوئی مذاکرات طے نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے امریکی صدر کے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ آئندہ دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان کسی بھی مذاکرات کا شیڈول طے نہیں کیا گیا۔ ایرانی تکنیکی وفد اس ہفتے دوحہ کا دورہ کرے گا، تاہم اس کا امریکی حکام کے دورے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایران نے ابھی تک حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات شروع نہیں کیے۔ اس کے لیے مفاہمتی یادداشت کے بعض نکات پر عمل درآمد ضروری ہے۔
शराइत पूरी होने तक अमेरिका के साथ तकनीकी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं कतर में अमेरिका के साथ कोई तकनीकी मुज़ाकरात तय नहीं है। मुकर्रर करदा वर्किंग ग्रुप्स के अंदर तकनीकी बातचीत का पहला दौर शराइत पूरी होने और तारीख और मुकाम पर इत्तफाक होने के बाद मुनक़िद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी हम मनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाक सऊदी मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन सिक्योरिटी अमूर को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल होगा। दोनों वज़राए दाखिला की मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकराती मुआहदे समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। ओमान ईरान का अपना हरमोज़ पर राबता और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सल्तनत ओमान और ईरान के अपना हरमोज़ से मुतालिक मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास में अपना हरमोज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम और मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने मुश्तरका मफादात और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा किया। ओमान और ईरान ने बैनुल-अक़वामी क़ानून की पासदारी के आज़म का भी इयादा किया। अपना हरमोज़ में जहाज़रानी और बहरी खिदमात के शोबों में ताउन के फ्रेम वर्क पर गौर किया। मशरिक़ वस्ता फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा, मकबूजा फ़लस्तीन में हम जो कुछ देख रहे हैं वो मुनज़्ज़म और सोची समझी मुहिम है। मकबूजा फ़लस्तीन में बस्तियों की तोसी, ज़मीनों का इल्हाक और मकानात मिस्मार किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल और बेघर करके जायज़ फंड्स रोके जा रहे हैं। मकबूजा फ़लस्तीन की सूरत हाल कोई अफरा तफरी नहीं। मकबूजा फ़लस्तीन में गैर कानूनी इसराइली कब्ज़े को दवाम देने का तयशुदा फ्रेमवर्क है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए नया फंड कायम। पार्लिमान का दिन कानून की हुक्मरानी अवामी शिरकत के असूल मजबूत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लिमान के दिन पर पैगाम। कहा, आइन जमहूरी निज़ाम हुकूमत और जमहूरी इक़्तिदार की ज़मानत देता है। आइन की असल रूह के मुताबिक इक़्तिदार का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। पार्लिमान वो आइनी फोरम है जहाँ अवामी तर्जुमानी से कवानीन बनते हैं। पार्लिमान में कौमी वसाइल के इस्तेमाल की निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाता है। पंजाब में माहौल दोस्त नकलो हमल का सबसे बड़ा इनकलाब। वज़ीर आला मरीम नवाज की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ की बदौलत पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क़याम का संग मील अबूर कर लिया। मरीम नवाज की ग्रीन ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें, ई टैक्सियाँ, ई बाइक्स और E3 व्हीकल्स एक साथ मुतारिफ़ कराने की हिदायत। नौजवान तलबा के लिए आसान तरीन अक़सात पर 1 लाख ई बाइक्स मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला। तलबा को सिर्फ 2100 रुपये माहाना सूद फ्री क़िस्त अदा करनी होगी। वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने एक और तारीख़ी संग मील अबूर कर लिया। 1,66,000 बिलासूद कर्ज़े जारी। घरों की तामीर के लिए 215 अरब 76 करोड़ रुपए से ज़ायद जारी किए जा चुके। अब तक 1,05,594 घर मुकम्मल। हज़ारों ख़ानदान अपने घरों में मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर में हुकूक की आड़ में पुरतशद्दुद रास्ता अपनाने वाली नाम निहाद एक्शन कमेटी को कलअदम करार देना बेहतरीन इक़दाम करार। शहरियों ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के अज़ाइम मुस्तरद करते हुए उस पर आयद पाबंदी के हुकूमती फ़ैसले को खुशाइंद करार दिया। शहरियों ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि हुकूक के नाम पर पुरतशद्दुद रास्ता अपनाने वाली नाम निहाद एक्शन कमेटी को कलअदम करार देना हुकूमत का दानिशमंदाना इक़दाम है। हुकूमत के इस इक़दाम से आज़ाद जम्मू कश्मीर जैसे हसास खित्ते को मज़ीद इंतशार और जानी और माली नुकसान से बचा लिया गया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद एहतजाज से न सिर्फ आवाम की ज़िंदगी बल्कि कारोबार भी मफलूज हो रहा था। आज़ाद कश्मीर में रियासती रेट कायम करने और अमन की बहाली पर शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को अवामी दोस्त करार दे दिया। शहरियों ने वाज़ेह कर दिया कि वो इंतशार और गुमराहकुन प्रोपेगंडे का हिस्सा बनने के बजाय अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं।
मौर के हक में पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती बरतरी नुमाया। बरतानवी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन फ्रेम की शवाहिद पर मबनी रिपोर्ट जारी। आलमी सराय अफलाक और तहकीकाती इदारे मौर के हक में पाकिस्तान की अस्करी बरतरी और भारत की बदतरीन शिकस्त का बारहा एतराफ़ कर चुके हैं। बरतानवी अशाती इदारे में पाकिस्तान प्ले बुक की तहकीकाती रिपोर्ट ने मौर के हक में पाकिस्तान की फैसला कुन बरतरी को हक़ाइक़ और शवाहिद के साथ उजागर कर दिया। पाकिस्तान प्ले बुक एक आज़ाद तहकीकी और तज्ज़ियाती इदारा है जो जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिकल, इलाकाई सलामती और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस का अहाता करता है। बरतानवी स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड कम्युनिकेशन फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक मार के हक में राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारे तबाह हुए। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी और फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने भी मार के हक में भारत के भारी नुकसानात की तौसीक की। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दिफाई आताशी भी मार के हक में अपने भारी नुकसानात का बरमला एतराफ़ कर चुके। मार के हक में फ़तह के बाद अमरीका समेत दीगर ममालिक के साथ बेहतरीन और मजबूत सिफारती ताल्लुकात कायम करने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। मार के हक में पाकिस्तान की वाज़ अस्करी बरतरी ने फ़ज़ाइया समेत दीगर शोबों में भारत की दिफाई कमज़ोरियों को अया कर दिया। पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली के बायस ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले पाकिस्तानी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान की मौर के हक में कामयाबी जदीद जंगी निज़ाम और पेशवाराना सलाहियतों का मजहर है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मौर के हक के दौरान पाकिस्तान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत भारतीय ड्रोन्स मौसर साबित नहीं हो सके। सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद इस मौक़िफ़ को तक़वियत देते हैं कि पाकिस्तान के किसी जंगी तैयारे का नुकसान नहीं हुआ। मौर के हक में पाकिस्तानी महदूद वसाइल के बावजूद भारत पर वाज़ अस्करी बरतरी हासिल करके कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे J-10C की कीमत 40 से 55 मिलियन डॉलर और भारतीय राफेल की कीमत 115 से 140 मिलियन डॉलर है। मौर के हक में पाकिस्तान के नुकसानात की शरह इंतहाई कम और भारत को तकरीबन 45 से 51 बिलियन डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मौर के हक के बाद यूरोपीय यूनियन समेत बड़े आलमी इदारों से ताल्लुकात ने पाकिस्तान के आलमी वक़ार और सिफारती साख में भी पनाह इजाफा किया। मौर के हक के बाद सिफारती कामयाबियों के तसलसल में पाकिस्तान के अमरीका और ईरान अमन मुआहदे की तकमील को आलमी सतह पर सराहा गया। अफगान तालिबान रजीम के माशी तरक्की के दावे झूठे साबित। अफगान अखबार ज़मीनी हक़ाइक़ सामने ले आया। पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने वाली तालिबान रजीम ने अफगान शहरियों को शदीद माशी बदहाली का शिकार कर दिया। अफगानिस्तान के मकामी अखबार हज सुबह ने अफगान अवाम की हालत इज़हार को आश्कार किया कि नाम नहाद माशी तरक्की के दावेदार तालिबान रजीम में आम अफगान शहरी एक वक्त का खाना भी नहीं खरीद सकते। काबुल के शहरी कहते हैं कि तालिबान रजीम के बेहतर मईशत के दावे लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकतों से मुताबिकत नहीं रखते। तालिबान ने ख़वातीन को पाबंदियों में जकड़ कर और उन्हें माशी सरगर्मियों से निकाल कर अफगान मईशत को शदीद तबाही से दो चार कर दिया है। मोदी की मुसलमान दुश्मनी में बनाया गया राम मंदिर करप्शन के बड़े स्कैंडल की जद में अहम रियासती इंतखाबात से कबल राम मंदिर मेगा करप्शन केस मोदी हुकूमत की रुसवाई का सबब बन गया। आलमी जरीदा अल जज़ीरा के मुताबिक राम मंदिर की इंतजामिया ने हिंदुओं के दिए गए अतियात में से लाखों डॉलर की हेरा फेरी की है। 1992 में इंतहा पसंद हिंदू हुजूम के हाथों शहीद की जाने वाली बाबरी मस्जिद की जगह मोदी हुकूमत ने राम मंदिर बनाया था। मंदिर में करप्शन ने खुद को हिंदू अकीदे के मुहाफिज कहने वाली जमात बीजेपी के बयानिए को खाक में मिला दिया। भारतीय जरीदा टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अखिलेश यादव की शदीद तनकीद, कहा मोदी हुकूमत के लिए कौन पहले नहीं चंदा पहले है। ऑल इंडिया कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के राम मंदिर में तकरीबन 5000 करोड़ रुपए तक की करप्शन का इंकशाफ। सियासी तज्जियाकार रशीद खुनवाई का कहना है कि बीजेपी तवील अरसे से राम मंदिर मुहिम को एक मरकजी सियासी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करती आई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले। सचल थाने की हदूद में शहरी की फायरिंग से एक मुबैना डाकू मारा गया। क्लिफ्टन में मुसल्ला डाकुओं की फायरिंग से 5 ज़ायरीन जख्मी। शालती पुलिस ने
मुकाबले में एक डाकू मार दिया, साथी फरार। नाज़िमाबाद पुलिस से एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ लिया। स्टील टाउन पुलिस से मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी, असलहा, मोटरसाइकिलें, लूटा हुआ सामान और नकदी बरामद। लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी में शौहर के हाथों बीवी कातिल, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकबूलों ने 3 साल कबल पसंद की शादी की थी, 2 साल का बेटा है। वाक़या घरेलू नाचाकी के बायस पेश आया। FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई, माइग्रेंट स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी से वीज़ा के लिए 50,50,000 रुपये हथियाए। मुलजिम शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहा और रुपोश हो गया था। मुख्तलिफ शहरों में NF मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 6 मुलजमान गिरफ्तार, 62 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मनशियात बरामद। ई चालान ना दहिंदगान को आज आखिरी मौका। DIG ट्रैफिक पंजाब का ई चालान ना दहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। कल से ई चालान ना दहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का आगाज़ होगा। तर्जुमान के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस 1 ऐप से मौके पर ई चालान की तस्दीक करेगी। शहरी ई चालान की तफसीलात पंजाब सेफ सिटी की वेबसाइट से हासिल करें। सेफ सिटी में कायम वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी ने कई साल से बिछड़े अफराद को अपने घरों तक पहुंचा दिया। सेफ सिटी मेरा प्यारा टीम की काविशों से 182 गुमशुदा और लावारिस अफराद के अहले खाना की तलाश मुमकिन बनाई गई। मेरा प्यारा टीम ने कराची के ईदी होम्स का दौरा करके 800 से ज़ायद गुमशुदा, लावारिस और खुसूसी अफराद का डेटा इकट्ठा किया। मेरा प्यारा टीम ने तमाम अफराद के इंटरव्यूज, तस्वीर और बायोमेट्रिक मालूमात हासिल करके मेरा प्यारा सिस्टम में शामिल की थी। कराची का मौसम जुज़वी अबारालूद 24 घंटों के दौरान मौसम मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह और रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।